और दिस इज द लिंकेज. इफ इट टर्न्स लाइक दिस, तो ये जो पॉइंट है ये इधर पे जाएगा ना, सो दिस लिंकेज विल मूव एंड वाइस वर्सा आल्सो सेम. So over here, this linkage operates what is known as feedback transmitter. This moment is proportional to what is the angle. So 5-degree angle will give me a certain signal, 10 will give another signal proportionately. So this is your feedback . Now this feedback transmitter has dual purpose. One is it is giving signal to rudder angle indicators and all the repeaters which are there. Bridge pe, wings pe. In engine room also many ships you have the angle indicator, rudder angle. So that signal is being used to give you the angle. Plus this signal also comes back, sorry, yeah. Now this signal we call it measured value signal. आपने कंट्रोल सिस्टम कुछ किया सिलेबस में है, PID कंट्रोल वगैरह, कोई बात नहीं, no problem. So in any control system we have two things. One is what is the current value, है ना, और दूसरी है desired value, जो आपको चाहिए. तो डिजायर्ड वैल्यू को हम सेट पॉइंट भी बोलते हैं कि भैया हमें 10 डिग्री चाहिए रडर एंगल, लेकिन अब कितना है, अभी है 5 डिग्री, करेक्ट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यू. व्हाट इज द डिफरेंस? 5 डिग्री है ना, 5 and 10 अगर है तो. सो दैट इज कॉल्ड डेविएशन. और सो दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू सिग्नल बिकॉज वट एवर इज द पोजिशन ऑफ द रडर इज गिविंग मी दैट वैल्यू. इट इज इन मिडशिप 5 degrees, 10, 15, 20, 30, 35. Same way on other side. Ambega measured value. Measured value is the current value of the parameter which you are controlling. What we are controlling? Rudder angle. Although it is applicable everywhere. Control system में I am maybe controlling jacket water temperature मेरे इंजन का, या विस्कोसिटी कंट्रोल कर रहा हूँ बस. तो अब जो वैल्यू है उसकी कितना टेम्परेचर है वो मेजर्ड वैल्यू है, करंट वैल्यू. और कितनी चाहिए वो होता है सेट पॉइंट. मेरे को 85 डिग्री चाहिए आउटपुट टेम्परेचर, अभी 80 है. सो 85 इज सेट पॉइंट, वो मैंने सेट किया कि मेरे को चाहिए, और अभी उसकी 80 है तो वो कंट्रोल सिस्टम को 85 पे ले आएगा. अगर ज़्यादा है 87 है तो 80 कम करके 85 पे ले आएगा. सेम थिंग इज हियर. माई करंट वैल्यू, वट एवर इज द करंट वैल्यू ऑफ द रडर एंगल is coming as a feedback signal. Rudder angle indicators. तो ये भी आ रहे हैं, जहाँ जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा दो. Now this is measured value. Since this is the measured value, I must also have a what is called as set point. Set point is what I want. In this case, if I am on hand steering, I am setting the set point. I say okay 5 degrees port. So I have set the set point to 5 degrees. मैं बोलता हूँ hard over, I have set it to 35. Now the control system will say okay, I want the requirement is 35 degrees. अभी midship पे है. So the difference between the two is how much? 35 degrees. That is called deviation. Control system works on the deviation. So set point minus measured value is called theta or deviation. कंट्रोल सिस्टम का पर्पस क्या है? वो कहता है कि सेट पॉइंट और मेजर्ड वैल्यू सेम होनी चाहिए. देयर शुड बी नो डिफरेंस. अगर 35 चाहिए मिडशिप है तो नाउ थीटा इज 35, थीटा इज 35. कंट्रोलर विल वर्क इन सच ए फैशन कि भैया दोनों बराबर हो जाए. दैट मीन्स डिफरेंस थीटा शुड बी 0 and therefore set point minus measured value should be equal to 0 or set point should be equal to measured value. This is the purpose of the control system. और ये कौन प्रोसेस कर रहा है? ये बंदा. कंट्रोल सिस्टम जो है ये हमें नहीं कुछ करना, वो तो प्रोग्राम है बनाया हुआ उसने. So this is how the control system will keep working, and at every time if there is theta
then there will be a control action. If theta is 0, that means the rudder is at a value which we want. Correct? Is it clear to everyone? Okay. Hunting gear करेंगे. अच्छा, what is hunting gear? Okay, hunting gear is now based on this signal what we get here from brakes. Let us do with an example. Let us say I want 20 degrees port. तो कंट्रोल सिस्टम से आप हैंड मैनेवरिंग कर रहे हैं, आपने 20 डिग्री पोर्ट दे दिया. जब 20 डिग्री पोर्ट दिया तो ये सिग्नल आ गया टेलीमीटर रिसीवर को. टेलीमीटर रिसीवर ने हंटिंग गियर को बोला भाई 20 डिग्री पोर्ट चाहिए. तो हंटिंग गियर जो है व्हाट इट विल डू, इट विल वर्क हियर. दिस इज ओके, आई फॉरगॉट टू राइट हियर. दिस इज कॉल्ड पीएसएल, पंप स्ट्रोक लीवर. अच्छा हो गया याद दिला दिया. सो हंटिंग गियर क्या करता है, बेस्ड ऑन दिस theta which is 20 degrees now, it will send a signal to hunting gear. Hunting gear क्या करेगा, पंप स्ट्रोक. पंप जो है इसका if it is a variable delivery pump, it will change the pitch of the pump. जैसे थ्रस्टर में करते हैं ना, quarter to port, half to port. Some of you might have worked on the thruster unit. PSL means Pump stroke lever. पंप स्ट्रोक लीवर. इस लीवर का क्या काम है, बेस्ड ऑन व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड. पंप जो है दिस वन आई एम टेकिंग इट एज ए वेरिएबल डिलीवरी पंप. ओके, वेरिएबल आई विल शो यू a sketch also of the pump, वेरिएबल पंप, वेरिएबल पंप. हालांकि आपको एग्जाम में आता नहीं है स्केच इस टाइप उसका, लेकिन for understanding we can always see what is the type of pump. Variable delivery का क्या होता है कि it has got a swash plate. प्लेट एक होती है ऐसे. अब ये अगर 0 एंगल पे है, यहाँ पे इसके पिस्टन्स होते हैं ऐसे, है ना. तो जब तक ये ऐसे घूम रहे हैं सिलेंडर के अंदर तो कोई स्ट्रोक नहीं है, 0 है. सो वी कॉल इट 0 पिच. यानी पंप जो है ना तो सक्शन ले रहा है ना डिलीवरी कर रहा है, 0 पिच. फिर हमने क्या करते हैं, पंप स्ट्रोक लीवर जो है क्या करेगा, इसको यहाँ से लिंकेज लगा हुआ है, इसको ऐसे कर देगा. तो जितना ये एंगल करेगा इमीडिएटली ये जो पंप है सक्शन इधर जाएगा, सक्शन लेगा. यही प्लंजर जब यहाँ आएगा ऐसे घूम रहा है तो यहाँ डिलीवरी करेगा. बट स्ट्रोक इज चेंज बिकॉज ऑफ दिस एंगल. जितना ज़्यादा एंगल होगा स्ट्रोक उतना होगा. स्ट्रोक ज़्यादा का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी आएगी. देयरफॉर वेरिएबल डिलीवरी पंप कैन डिस्चार्ज फ्रॉम 0 टू ए मैक्सिमम angle which is designed normally it is 15.5 degrees normally. Variable delivery pumps का 15.5 मैक्सिमम होता है. इसका मतलब यह है कि जो 15.5 पे होगा उस टाइम में जो पंप की डिलीवरी है, डिलीवरी से मतलब क्या है, हाउ मेनी, छोटा पंप होता है ना, इसलिए हम लोग क्यूबिक मीटर में नहीं लेते इसको, लीटर्स पर मिनट. सो नॉर्मली 270-280 लीटर पर मिनट वो डिस्चार्ज कर रहा है जब उसकी पिच मैक्सिमम है या स्वैश प्लेट पूरी ऐसे घूमी हुई है. So this angle from 0 position to 15.5 पे है तो उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है पंप की लेट अस से 270 या 280 लीटर्स पर मिनट उतना डिस्चार्ज करेगी. और अगर ये एंगल मेरा कम हो गया तो 260, 250, 100, 50, 0. जब ये स्ट्रेट हो गई अब वो पंप कुछ नहीं डिस्चार्ज. अब मैंने इसको इधर से इधर एंगल दे दिया. अभी तक ये इस साइड में डिस्चार्ज कर रहा था, अब ये वो दूसरी साइड डिस्चार्ज हो जाती है, अब चेंज होगा, रिटर्न हो जाएगी. अगेन सेम वे 55 पे है तो मैक्सिमम इन बिटवीन प्रोरेटर. सो दिस इज हाउ दिस पंप कीप्स डिलीवरिंग. सो वी कॉल इट वेरिएबल डिलीवरी पंप. तो ये जो पंप होता है बहुत फायदेमंद है. ये पंप बाद में जैसे जैसे करेंगे वी विल टेल यू की एडवांटेजेस क्या हैं इस टाइप के पंप के. वेरिएबल डिलीवरी पंप का क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूनिडायरेक्शनल. इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही. पंप तो हमेशा मोटर से लगा हुआ है ना, तो डायरेक्शन जो है पंप की सेम रहती है हमेशा. सो यूनिडायरेक्शनल फिक्स आरपीएम, जो मोटर के आरपीएम है उतने पे चलता है. एंड वेरिएबल डिलीवरी वेरिएबल हो रही है. पंप स्ट्रोक लीवर ने इसको कितना एंगल दिया है स्वाश प्लेट तो वेरिएबल डिलीवरी होगा. एंड रिवर्सिबल, पिच इधर से इधर की और इससे इधर की तो फ्लो जो है इधर की जगह हाई प्रेशर की जगह इधर हाई प्रेशर हो जाएगा. So these are the properties of a variable delivery pump. So we can change it
विद द हेल्प ऑफ पंप स्ट्रोक लीवर कि इसको ये वाले को हाई प्रेशर करना है या इधर को हाई प्रेशर करना है। अगर आपने फोर्थ साइड मूवमेंट दिया है, चाहे वो कुछ भी हो 0 से 35 तक, तो ये हाई प्रेशर होगा, ये लो प्रेशर होगा। लेकिन अगर आपने स्टार्बोर्ड दिया है तो वो ये हाई हो जाएगा, रैम विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, रडर विल आल्सो मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली हंटिंग गियर के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है वो कन्वर्ट करके मैकेनिकल क्या काम कर रहा है पंप को वो बता मैकेनिकल ही है, ये सारा मैकेनिकल है। यहाँ तक इलेक्ट्रिकल आया, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल आया, इसके बाद इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है। इसके बाद ये मैकेनिकल लिंकेज है जो हंटिंग गियर को कर रहा है। हंटिंग गियर से पंप स्ट्रोक लीवर पंप को दे रहा है। पंप जो है ये फिर हाइड्रोलिक हो गया, फिर रैम का मूवमेंट हाइड्रोलिक फोर्स के प्रेशर की वजह से है। आपका जो टिलर है वो भी मैकेनिकल है, रडर स्टॉक मैकेनिकल है, और रडर के नीचे जो रडर लगा हुआ है वो भी मैकेनिकल है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ we have option of normal during maneuvering time we are using hand steering, correct? मान लो hand steering fail हो गई, it is not responding, correct? Then what we can do? We can go to NFU. अभी NFU जाने से पहले हमें एक और काम करना है, change this system from 1 to 2. Maybe this amplifier was not working, so we can try. क्योंकि वही है, कोई दूर थोड़ा, जहाँ आप खड़े हो वही तो आपका स्विच भी है। There is no time delay. Change over to system 2. System 2 भी नहीं चल रहा है. Then go for NFU. NFU is directly controlling. It is bypassing these two, and so this NFU is coming directly here. So even if both these systems are not working, we can still operate the telemotor receiver. And only problem here is this is not there. ये जो सिग्नल आ रहा था ये नहीं है, क्योंकि आपका फेल हो गया ना, ये सिस्टम ही खराब हो गया, फीडबैक नहीं आ रही। अगर ये कंट्रोलर काम नहीं कर रहा तो उसके पास आ भी रहा हो सिग्नल तो वो क्या करेगा, प्रोसेस नहीं कर सकता ना उसको। सो इन दैट केस NFU इज व्हेन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग, इट विल स्टिल ऑपरेट एक्सेप्ट दैट इट विल नॉट फॉलो योर ऑर्डर। आप ये नहीं कह सकते कि अभी 5 डिग्री हो गया या 10 हो गया, 15। नो, यू हैव टू विजुअली सी व्हाट इज द रडर एंगल एंड अकॉर्डिंगली स्टॉप। Moment you release your NFU, if it is a lever operated, अगर ये पुश बटन टाइप है तो जब तक पुश बटन दबा के रखोगे रडर चलता रहेगा, छोड़ दोगे तो वही रुक जाएगा। लेकिन रडर एंगल इंडिकेटर में दिखाएगा वो एंगल दिखाएगा, और सिग्नल फीडबैक प्रोसेस, बट इट कैन नॉट प्रोसेस। फीडबैक तो आ रहा है कि भैया अभी 10 डिग्री आ गया, लेकिन इसको तो मालूम नहीं है ना, ये तो खराब हो गया, इसको नहीं मालूम कि अभी कितना आया। इट कैन नॉट कैलकुलेट थीटा, ये उसके लिए जरूरी है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम वर्क्स ऑन थीटा एंड इट कंटिन्यूज टू वर्क टिल थीटा इज 0। लेकिन अब उसको मालूम ही नहीं है कि क्या है वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू सिग्नल की प्रोसेस नहीं कर सकता, तो देन इट विल नॉट गिव आउटपुट सिग्नल। सो देयरफॉर वी कैन यूज NFU इन दोज कंडीशंस। देन वी विल सो नॉन फॉलो अप, दैट इज नॉन फॉलो अप सिस्टम। इन auto operation, what we are doing, we are setting the heading. Okay, this is the heading we want, so that becomes my set point now. And then based on the rudder angle, it will as the heading changes, we know what is the difference between the heading I want, and accordingly the control system will keep correcting it. Vessel will go in the correct direction. So this is the overall picture, right? Then we will see, because there are so many designs of the steering gear system, and so accordingly the exact components vary from one chip to another, but the principle will not change. All will have some way of doing the same function what we have discussed. Okay, so up to here is okay? Yes, sir. As in? बस? यस सर। आपकी मर्जी है, देखो मैं तो मेरा प्रिंसिपल ये है कि जितना समझ में आपको आए उतना समझ लो। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग ऑन यू, सो एज लॉन्ग एज यू कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इज ओके। ये आगे हाँ जी, नोट्स भेजेंगे सर। देखो
आई विल गिव यू सम, मैं दे दूंगा पीपीटी दे दूंगा या कुछ So ये मैकेनिकल कनेक्टिंग रोड सिस्टम है। एक तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कल ये है, कल भी है। I will show you. There are two types. One is called a system whereby this hunting gear is mechanical. तो वहाँ पे तो आपके इसमें भी दिया हुआ है ना, दिस इज योर देखिए इधर में ये के इधर में जो दिया है, दिस इज हंटिंग गियर, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ L1 L2 एंड L3, दिस इज हंटिंग गियर। पर आजकल क्या हो गया है कि नए जो शिप्स है उसमें ये सब मैकेनिकल गिर जाते हैं, वुश बैंड हो गया, तो आजकल आ गया टॉर्क मोटर्स, उसके अंदर ये सब नहीं है। ये ऐसी मोटर से गिरी, वो मोटर ऐसी नहीं घूमती रहती, इट इज ए पोजिशनल मोटर। कहने का मतलब ये है कि आप जितना एंगल दोगे ब्रिज को 10 डिग्री 15 डिग्री, टॉर्क मोटर उतना ही घूम कर दिया है 5 डिग्री दिया, टोटल इसका 20 डिग्री होता है एंगल, 20 फिक्स से इधर यानी 20 दिया है तो इसका मतलब 35 आपने ब्रिज से दिया है, और कम किया है तो उससे कम प्रोपोर्शनल। सिमिलरली टावर में 0 से 20 डिग्री। ये जो मोटर है पोजिशनल मोटर है, कहते हैं इसको टॉर्क मोटर। इससे जो लिंकेज है पंप स्ट्रोक लीवर को दिया हुआ है। तो ये जो ये हंटिंग गियर के L1 L2 L3 ये सब कम डाल दिया, ठीक है ना। तो ये इस पे डिपेंड करता है कौन सा आपके सिस्टम है, बट हंटिंग ही घूमेगा, पीएसएल घूमेगा, तो बस पंप जो क्लिक ने घुमा, पंप ने डिलीवर करना शुरू कर दिया, रैम मूव करने लग गया, फीडबैक ने बोला भाई आ गया 20 डिग्री मांगा था, 20 हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रडर में घुस जाएगा, और उस कंडीशन में रडर इज हाइड्रोलिकली लॉक। लॉक मतलब रैम के दोनों साइड में प्रेशर रिलीज नहीं हो सकता किसी भी, क्योंकि ये जो पंप जब आ गया उस कंडीशन में, तो these are blocked, these are blocked, this will be blocked, this will be blocked। अब जो है ऑयल इज नॉन कंप्रेसिव ना, तो अगर चाहे भी ये मूव करना तो कर नहीं सकता, क्योंकि बैक प्रेशर हाइड्रोलिक ऑयल का वो कहीं जा नहीं रहा, सो रडर विल स्टे देयर इन दैट पोजीशन, दैट इज व्हाट इट डज। इसका सिग्नल, ये जब रडर मेरा हाइड्रोलिकली लॉक हो गया, इस सिग्नल कैसे पहुंच रहा है वहां तक? अभी हम करेंगे ना और स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो फीडबैक ट्रांसमिट पता चल रहा है रडर सिस्टम है। इज इट द फीडबैक Transmitting ट्रांसमिट? signals to the hunting gear, then it is both have to match। where's are there? हंटिंग गियर जो है अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जब हमारा डिजायर्ड एंगल आता है तो क्या होता है। Because independently control descending signals to the hunting gear, तो उसको पता है कि कितना आ गया, तो उसके हिसाब से बैक फ्लो हो जाएगा। उसके हिसाब से वो पिच जो है 0 आ जाएगी, पिच तब 0 आएगी जब आपका रडर उस एंगल में आ गया जिसमें आना था। अगर उसे 20 पे आना था तो शुरू में तो 20 के हिसाब से पिच है उसके ऑयल, लेकिन जैसे जैसे रडर मूव करता है ना, तो मिडशिप से 5 डिग्री मूव किया, 10 15 20 तक आना है। जैसे जैसे आता जाएगा ना कम कर वो पिच भी कम करता जाएगा, इनिशियली मैक्सिमम पिच देगा ना, फिर वो पिच कम होते होते 0 आ जाएगी, तो 20 आया उसकी पिच 0 हो गई, पंप तो चल रहा है, मोटर थोड़ी आप बंद करते हो, वो हाइड्रोलिक फ्लो बंद करते हैं, हाइड्रोलिक फ्लो क्या बात है?